دوستوں ساتھیوں چلتے چلتے بائی خوشتر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ہائی گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل چلتے چلتے بائی خوشتر. دوستوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہم مولانا بزل وارث سے ملتے ہیں. مولانا بزل وارث نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے لے کر کے اعلیٰ تعلیم مدرسہ ایجوکیشن سے حاصل کی ہے. مدرسہ میں یہ پڑھتے رہے ہیں اور مدرسہ میں پڑھنے کے بعد فراغت کے بعد کئی سالوں تک مدرسہ ایجوکیشن میں پورے فاضل ہونے کے بعد کئی سالوں تک درس و تدریس دینی مدارس میں اور مسجد میں امامت کے ذریعے انجام دیا ہے. پھر اس کے بعد ایک چاہ ہوتی ہے اعلیٰ ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم حاصل کیا جائے اور اس کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں حیدرآباد. حیدرآباد میں ایک مشہور معروف جامعہ ہے یونیورسٹی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. وہاں سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ دونوں کے، چونکہ ان کا ایک اچھا خاصا تجربہ رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا بھی، تو پڑھنے کے تعلق سے بھی پڑھانے کے تعلق سے بھی، چونکہ انہوں نے بچوں کو پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے، تو ہم جانیں گے بٹوین ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم ان مدرسہ اینڈ یونیورسٹی اسکول کالج. تو آئیے اسٹوڈیو میں چلتے چلتے بائی خوشتر میں آپ کا مولانا بزل وارث کا خیر مقدم ہے. تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں سے پڑھے مدرسہ وغیرہ میں، آپ نے کہاں سے تعلیم لی؟ اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. ابتدائی تعلیم اپنے نانا محترم مرحوم حافظ مسلم صاحب وارثی علیہ رحمۃ الرضوان سے، ان کے بعد دارالعلوم فیضان وارث میں اپنے مشفق اور مہربان اساتذہ کی موجودگی میں جی چھٹی جماعت تک تعلیم حاصل کیا، جی. جس میں کچھ اساتذہ دار فانی سے رخصت بھی ہوئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے. آمین. ان کے بعد اپنے مشفق و مہربان استاذ گرامی حضرت حافظ نقی صاحب قبلہ اور مولانا غلام وارث صاحب قبلہ علیہ الرحمٰن کی دعاؤں سے اور جی. ان کے اشارے ایما پر میں دارالعلوم مدرسہ عربیہ رضویہ ضیاء العلوم قدری پہنچا. اپنے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا فضل وارث صاحب قبلہ مصباحی کے ہمراہ جی داخلہ لیا. 6 سال تک وہاں پہ یہ جو میں نے جی یہ جو تعلیم حاصل قدری ہے کی. جی یہ کہاں پہ پڑتا ہے ضیاء العلوم؟ جی یہ مئو ضلع اتر پردیش میں اچھا، مئو ضلع اتر پردیش میں. جی قدری ایک قصبہ ہے جی. جہاں ایک بہت ہی مشہور معروف ادارہ ہے جی عربیہ رضویہ ضیاء العلوم. جی استاذ گرامی حضرت مولانا خورشید صاحب قبلہ اور ہمارے پرنسپل صاحب حضرت علامہ مولانا ہاشم محمد صاحب قبلہ، جی ان اساتذہ کرام کی نگرانی میں جی جماعت سادسہ تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد فضیلت کی تعلیم کے لیے میں دارالعلوم مغرب نواز الہ آباد، اچھا جو علامہ مشتاق نظامی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا مشہور و معروف ادارہ ہے، جی اور استاذ گرامی حضرت علامہ ابو سفیان صاحب قبلہ کی نگرانی میں جی فضیلت اچھے نمبروں سے کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فراغت کے بعد جی درس و تدریس میں لگا، جی بچوں کو پڑھایا بھی. جی 15 سال امامت بھی کیا. 15 سال کا ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے. جی. اس کے بعد میں کچھ اپنے تجربات کو آگے بڑھانے کے لیے جی آپ ہی کے ہمراہ جی. حیدرآباد میں نے قدم رکھا. اچھا یہ بتائیے جی کہ اچانک آپ کا کیسے من کیا، موڈ بنا کہ مدرسہ، تو آپ نے فضیلت تک تعلیم حاصل کی، 10-15 سال ایکسپیرینس رہا مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کا، امامت کا، یونیورسٹی کی طرف آنے کا کیسے من ہوا؟ جی یونیورسٹی میں آنے کے بہت سارے مقصد ہیں اور من بنا چکے. ایک تو پڑھنے پڑھانے کا ماحول، اور دوسری چیز یہ کہ مدارس میں جو تعلیم حاصل کیا جی یونیورسٹی میں، اس کے تعلق سے چونکہ ہم لوگ جس وقت پڑھے اس وقت ہم لوگ کو اس کا علم نہیں تھا کہ یونیورسٹی میں ایسے ایسے ہوتے ہیں. جی. اس کے بعد معلوم ہوا، جب معلوم ہوا تو اپنے آپ کو کچھ آگے بڑھانے کے لیے جی اور کچھ اس لائن میں بھی آ کر کے تجربات کا مشاہدہ کرنے کے لیے یا تجربہ کرنے کے لیے میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا. جی اور ماشاءاللہ جس وقت میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا جی تو یونیورسٹی کا ماحول اور یہاں کی تعلیم کو دیکھ کر کے دل کی دنیا ہی بدل گئی. ایسا محسوس ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر کہ جو اساتذہ، ایک تو اساتذہ انتہائی خلیق ہیں. اچھا، خلیق ملنسار، جو بچوں کو یہ سمجھیے کہ یا تو اپنی اولاد سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اور یا تو یہ کہ اپنا دوست سمجھتے ہیں. اچھا. اور اس طرح سے پڑھاتے ہیں اور بچوں کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں جیسے ایک مشفق باپ اپنے بیٹے کو کرتا ہے.
मुस्तकबिल आपको किस तरह से रोशन करना है, मुस्तकबिल में आपको क्या करना चाहिए, ये सारे राह जो है असातिज़ा हमवार करते हैं। वो बच्चा जो माली हालत से कमज़ोर हो उसकी मदद भी करते हैं। उसके अलावा असातिज़ा में ये कि हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। आप मेरे मोबाइल पर कॉल करके हमसे वो चीज़ समझ सकते हैं जो आपकी समझ में नहीं आई हो, वो चीज़ पूछ सकते हैं जिसकी जानकारी आपको चाहिए, जिस काम के लिए आप आए हैं। असातिज़ा इतना मोटिवेट करते हैं कि न पढ़ने वाला लड़का भी पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। आपने क्योंकि दोस्तों साथियों, लास्ट वीडियो में भी हमने ये बताया था कि क्योंकि एक लड़का यहाँ आता है और एजुकेशन हासिल करता है, कहाँ से, मदरसा के बाद यूनिवर्सिटी में। आप खुद बाज़ाब्ते आपने फजीलत तक तालीम ली है, उसके बाद 15 साल आपने जैसा बताया एक्सपीरियंस रहा है पढ़ने पढ़ाने का, तो बड़ी बात है। और फिर यूनिवर्सिटी को अपने माथे की आंखों से करीब से देखते हैं, तो दोनों में आपको जो है काफ़ी अच्छा आपने बताया, क्योंकि आपने सब असातिज़ा की तारीफ की है इब्तिदा से लेकर अब तक। तो दोनों के मतलब पढ़ाने वाला जो सिस्टम है, निज़ाम, क्या उसमें कुछ फ़र्क महसूस हुआ और कुछ बदलाव किसी में भी चाहते हैं कुछ इस टाइप का? बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे तब्दीलियाँ आनी चाहिए। जी, हालात के तहत मदारिस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी में 6 माह कोर्स है, 1 साल कोर्स है, जिसमें बच्चे को ज़बान का माहिर बना दिया जाता है। अच्छा जी। और मदारिस जो है ये इस्लामिक है, अरबी से सारी किताब पढ़ते हुए भी हम लोग अरबी नहीं बोल पाए मुकम्मल तौर पे। बेशक सही बात है। कम से कम मदारिस में बच्चों को इस लायक तो होना चाहिए, एक लैंग्वेज जो है और हालात के एतबार से उसमें तब्दीली होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका जो इशारा है हम समझ रहे हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी को, यहाँ के बच्चों को अच्छे अच्छे जगहों पे जाते हुए देखा है। मिसाल के एक चीज़ हम कहना भी चाहते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में तलबा में ये देखा है कि यूनिवर्सिटी का जो टॉपर तलबा है, स्टूडेंट है, वो अपने कमज़ोर साथियों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है और कदम कदम पर उसकी रहनुमाई करता है। जी जी जी। और ये चीज़ मदारिस में इसका अब के दौर में फुकदान है, जिसकी सख्त ज़रूरत है। अखलाक को वसी करें, उसके साथ साथ के हालात के एतबार से तालीम में भी कुछ तब्दीलियाँ आनी चाहिए। जैसे बच्चों को ज़बान का माहिर बनाया जाए। अगर बच्चे मुहर्रिर बनना चाहते हैं, तहरीर की जानिब उसकी रग़बत है, तो उसको मुहर्रिर बनाया जाए। उसके अलावा ये कि अगर वो जैसे मुक़र्रिर है, आवाज़ अच्छी है, तक़रीर के फ़न में है, तो तक़रीर के लिए उसको तैयार किया जाए। अगर जैसे वो उसके अंदर फ़न तबलीग पाया जाता है तो उसे बेहतरीन मुबल्लिग बनाया जाए। क्या बात, ताकि हर दौर में काम हो चुके हमारे अग़यार जितने हैं, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, अग़यार को मैं देखता हूँ। अग़यार में हमारे ये है कि जो जिस जानिब जा रहा है उसको उसी जानिब मोड़कर उसका माहिर बनाया जाता है, ताकि वो किसी तरह से अवाम को अपनी जानिब माइल कर सके। और हमारे इसमें ये चीज़ नहीं है तो हमें इसके लिए अपने आप में भी सोचना चाहिए और इसके लिए हमें आगे की राह को हमवार करने हैं, ताकि मुस्तकबिल में बच्चों को इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े और उनके लिए कम से कम राह हमवार मिले। बहुत अच्छा आपने ये दिलाया। आप बीच में बहुत अच्छी बात ये भी कर रहे थे कि चूँकि ज़बान का माहिर, मिसाल के तौर पर यहाँ अरबी, अंग्रेज़ी, हिंदी या जो भी लैंग्वेज, पर्शियन, फारसी, ये सब पढ़ने वाले पढ़ करके बोलते हैं और उसी ज़बान में लिखते भी हैं। इसीलिए फेसबुक, उसके बाद गूगल और बहुत सारे कंपनी अमेज़ॉन है, विप्रो है, जी, दीगर कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब है जी। उसके दुनिया सब कमा रहे हैं और दीनी खिदमत फ्री में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया कमा रहे हैं दीनी खिदमत, चूँकि उनके पास पैसे आ रहे हैं, कंपनी के जरिए से अपनी जॉब कर रहे हैं, फ्री में हो, मसाजिद में हो या मकातिब में हो, बच्चों को दर्स दे रहे हैं और अपने दुनिया को भी आबाद कर रहे हैं, दीन को भी आबाद कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर दूसरी चीज़ के खिदमत खल्क का लोगों में वो जज्बा भी पैदा करते हैं। इसके जरिए से जब दुनिया उनकी खुद आ रही है, कंपनी के जरिए से पैसा आ रहा है, तो खिदमत खल्क भी हो जा रही है, बच्चों के लिए राह भी हमवार कर रहे हैं, दीनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। जी, आप चूँकि बराबर बड़े बड़े स्टेजों पर आपने तकरीर किया है, बड़े बड़े जलसे वगैरह किए हैं, क्या हम ये आपसे मुस्तकबिल में, अल्लाह करे आपका मुस्तकबिल, हम सबका मुस्तकबिल तामना को, हम लोग भी रोजी रोटी दुनिया भी एतबार से भी अच्छी जगह पे जाएं और दीनी एतबार से भी, हम ये क्या आप मुस्तकबिल में आपसे उम्मीद रखें कि अगर आप अच्छी जगह पे जाते हैं कुछ पर, या ये कि अगर मतलब मोटिवेशनल बच्चों को अच्छी राह बताएंगे कि ये तालीम वगैरह वगैरह इस ताल्लुक से? जी ज़रूर, इंशाअल्लाह जहाँ तक मुमकिन होगा जी। अगर खुदा ने इस लायक बनाया कि मैं दौलत से मदद कर सकूँ तो उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे बड़े अब्बा का भी ये मशवरा रहा है, डॉक्टर जुनैद साहब मरहूम, अल्लाह ताला की रहमत फरमाए, अभी कुछ दिनों कबल इंतकाल भी हुआ है। और मैं अगर मोटिवेट किसी को आगे राह बढ़ने के लिए अगर कोई चाहता है तो वो भी मैं
बच्चों को राह बता सकता हूँ। जी जहाँ तक मेरी वसात है मैं उसके लिए हमेशा तैयार जी। चलते चलते मैं लास्ट सवाल चलते चलते कि चूँकि ये मालूम हुआ आपके बारे में कि आप शादीशुदा भी हैं और एक बच्चे के फादर भी, माशाल्लाह मुबारक। अल्लाह करे आपकी आने वाली ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी खुशनुमा हो और रोशन मुस्तकबिल हो, अच्छा रहे सब कुछ। तो ये जो पढ़ने का जो सिलसिला है, क्या इसमें किसी तरह की परेशानियाँ? नहीं, अभी तक कोई परेशानी नहीं है और जी। होगी भी तो अल्लाह को थोड़ा जी, तो इसी के साथ हम ऐसा तो मतलब अल्लाह है, होगी भी तो देखा जाएगा। नहीं जैसे बहुत फिलहाल अभी सारी नहीं है। नहीं जैसे बहुत सारी चीज़ों की परेशानी वगैरह अभी की। किस तरह की कुछ भी तो नहीं। मतलब ये है कि अगर पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए आपकी ज़ात खुद मशाल राह है, जो बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं या किसी वजह से पढ़ना नहीं चाहते, 10th करके 12th करके या डिप्लोमा में एडमिशन लिया हो या ITI में या परेशानियां आए लेकिन पढ़ना ना छोड़ें कि हाँ। पढ़ने आप पढ़ करके हमारे अकाबरीन में से बहुतों के कौल है, बहुतों के कौल जी। ये है कि अगर आप कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद कुछ बन जाइए। अरे क्या बात क्या बात। कुछ इस पर थोड़ी देर अगर 1-2 मिनट जी कि खुद अगर कुछ बन जाइए। जैसे आप तालीम हासिल कर लेते हैं हाँ, तो उसके आपके जरिए न जाने कितने तालीम हासिल कर लेंगे, जी, आप बेशक, कितने बेशक। आपके जरिए से कितने राह पकड़ लेंगे, जी वो कुछ ना कुछ अपने आप में बन जाएंगे। मतलब पहले हम खुद बन लें, हाँ, अगर हमारी नौकरी हो जाती है, हम कुछ बन जाते हैं तो हम पीछे से बहुतों को ला सकते हैं, कुछ करा सकते हैं। जी जी जहाँ तक परेशानियों का है तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे घर वाले हैं, हाँ, ये सब पूरा तो सपोर्ट है। जी जी ये पूरा सब तो सपोर्ट है। वो तो माली एतबार से, लेकिन जहनी या हाँ, वक्त ज़हनी एतबार से भी हमारे भाइयों का अल्लाह का शुक्र है, हाँ। हर हाल में सपोर्ट है। जी तो दोस्तों साथियों, अभी आप एक ऐसी शख्सियत से बातचीत गुफ्तगू कर रहे थे, सुन रहे थे, जो बताते खुद लोगों के लिए मशाल राह हैं, जिन्होंने अपनी उम्र के बावजूद मदरसा एजुकेशन लिया, 10-15 साल इन्होंने पढ़ाया, इमामत किया, पढ़ाया दीनी इदारे वगैरह में। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में आते हैं, इनकी शादी हो चुकी है और इनकी एक औलाद, साहिब औलाद भी अलहम्दुलिल्लाह। तब इसके बावजूद भी जिद्दोजहद भरी जिंदगी गुजार रहे, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो पढ़ने से कतराते हैं, जो पढ़ने से भागते हैं, जो बीच में छोड़ देना चाहते हैं, वो मौलाना बदले वाइज के साथ उनके लिए मशवरा है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इसी नए मेहमान नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल चलते चलते मैं कुछ तक। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमको इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू।